Students, question number 12. In this question, we are given to integrate sin square x upon 1 plus cos x. Again in division. अब ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि हम अलग से sin square x का न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन अलग कर लें और 1 plus cos x का अलग से कर लें. No, it's not possible. So we have to find out the other way. कोई अलग से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी जिससे कि हम कुछ कैंसिल कर पाए, इनको सेपरेट कर पाए. तो हमें एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही है दैट sin square x can be written as 1 minus cos square x. Okay, and this can be further it one identity can be used as a square minus b square. We can write this one as 1 square minus cos square x. So a minus b, a plus b can be applied here. तो यहाँ पर हमने इसको 1 minus cos x 1 plus cos x कर लिया और ये 1 plus cos x से 1 plus cos x ये आपका कैंसिल हो गया and you are left with 1 minus cos x only. And now we can integrate very easily क्योंकि ये एक तो माइनस में हो गया, डिविजन खत्म हो गया अब इसका, और यहाँ पर ये स्क्वायर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली लीनियर फंक्शन है. सो वी कैन डू इट डायरेक्टली. 1 का इंटीग्रेशन आप कीजिए. 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका x हो जाएगा यहाँ पर, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पर sin x हो जाएगा, और इसके साथ ये आपका इंटीग्रेट हो गया. ठीक है जी. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. a है cos 2x minus cos 2 alpha अपॉन cos x minus cos alpha. अब ये फिर दोबारा से डिवीजन में है. देखिए अब वैसे तो ये हाँ माइनस है ना, यहाँ भी माइनस है. अगर हमें अलग अलग ये डिवीजन ना होता देन इट वाज वेरी इजी टू इंटीग्रेट cos 2x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है जी sin 2x अपॉन 2. तो कर लेते हैं हम यहाँ पर, बट नाउ इट इज इन डिवीजन सो देयर इज सम प्रॉब्लम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल what to do, that is to be decided, and why it is to be done. Look here students, in the numerator the angle is 2x double, you can see here also 2 alpha, but here in the denominator the angle is x and here is alpha, means the half of whatever angle is there in the numerator, half of that angle is here in the denominator. ठीक है. तो अब हम क्या करें? Can we use any identity? By using this, that we can make the angles equal. ये 2x को, yes, we have the identity cos 2x की identity लगाकर हम angle half कर सकते हैं cos 2x. But now we have to check one thing more. आप denominator में देखिए, here means only cos is written here, function cos है यहाँ पर, sin function है, क्योंकि cos 2x की हमारे पास क्या है, there are 4 identities. One is cos square x minus sin square x. But if we want it in terms of cos only, then we can write it as 2 cos square x minus 1. Yes, यहाँ पर क्या हुआ, as when I had explained you the identities at that time, I told you that cos 2x की चाहे हमारे पास 4 आइडेंटिटीज है, बट वी यूज दैट वन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. अब डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ये है कि डिनोमिनेटर में cos है, तो हम cos 2x की वो वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे यहाँ पर जिसमें सिर्फ cos आता है. तो दैट इज 2 cos square x मीन्स 2 cos square half of the angle minus 1. 2 cos square हाफ ऑफ द एंगल माइनस 1, तो 2x का हाफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. तो वही हमने यहाँ पर किया, 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, 2x का हाफ हो गया x माइनस 1, फिर माइनस लगाया, फिर इधर भी 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, 2 अल्फा का एंगल हाफ हो गया अल्फा माइनस 1. अब ये नेगेटिव साइन है ब्रैकेट से बाहर, तो इसको ओपन करेंगे, वी विल चेंज द साइन टू, ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा एंड दिस विल बी प्लस. माइनस 1 and this plus 1 is cancelled. So what is left here? 2 cos square x minus cos square alpha. Okay. So 2 common आ जाएगा आपका बाहर. 2 common I have taken. So now what is left here? Now this is cos square x minus cos square alpha. Cos square x minus cos square alpha. Again, we can see one identity can be applied here. What is that identity? A square minus b square. A square minus b square जो identity, according to that
a माइनस बी a प्लस बी कैन बी रिटर्न एज, तो यहाँ पर ये आपका cos x माइनस cos अल्फा इट इज कैंसल्ड। ओके, अब तो प्लस में आ गया, डिवीजन खत्म हो गया। मोर ओवर ये आपका cos, आपका मतलब कि cos x का इंटीग्रेशन भी हमें पता है। अच्छा चलिए देखते हैं अब क्या किया हमने। cos x का इंटीग्रेशन हमने लिख लिया क्या, sin x। cos अल्फा का sin अल्फा क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? ठीक है, उसका रीजन ये है कि आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पर cos का एंगल है अल्फा। हाँ जी, तो ये जो cos अल्फा है, देखिए बिकॉज देयर इज प्लस साइन, तो वी कैन राइट देम सेपरेटली, सेपरेट इंटीग्रेशन होगा cos x का, cos x dx इंटीग्रेशन अलग, और cos अल्फा का cos अल्फा dx। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है cos अल्फा dx सेपरेट अगर इंटीग्रेशन होता है, बिकॉज we dx represents that we have to take the integration with respect to x, but here this cos function is applied on alpha, not on x. So alpha is not the variable with respect to which we have to integrate, so that's why it is a constant, it will be considered as a constant। तो ये आपका कांस्टेंट है पूरा cos अल्फा, दैट्स व्हाई इट हैज बीन टेकन आउटसाइड द इंटीग्रल साइन, क्योंकि आपको पता है जो कांस्टेंट है वो हम बाहर ले लेते हैं, तो आई हैव टेकन इट आउटसाइड द इंटीग्रल साइन। अब अंदर क्या बचा, dx मींस वी आर टू इंटीग्रेट नाउ ओनली वन, वन इज लेफ्ट। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो आपने जब इसका इंटीग्रेशन किया, देखिए cos x, x है यहाँ पर, तो cos x का इंटीग्रेशन तो sin x हो गया, लेकिन जब cos अल्फा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x किया तो आंसर क्या आया, ये आया x cos अल्फा। So that's what I have written here, x cos alpha plus c. So it has been done. Number 14, in this we have to integrate cos x minus sin x upon 1 plus sin 2x. Again in division we are getting, जिसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, then what to do? So let us try to find out any identity with which we can solve our problem. Again, look here students, in numerator angle is x and in the denominator this sine is having its angle 2x। तो अब यहाँ पर हम इस एंगल को 2x को x कैसे करें, तो 1 plus sin theta can be written as sin theta by 2 plus cos theta by 2 whole square। ठीक है, जैसे आप 1 plus cos x, इसको याद रखना पड़ेगा, आपको पहले भी बताया 1 plus cos x क्या होता है, 2 cos square x by 2। 1 minus cos x क्या होता है, 2 sin square x by 2। ऐसे 1 plus sin x क्या होता है, sin x by 2 plus cos x by 2 whole square। ऐसे 1 minus sin x क्या होता है, sin x by 2 minus cos x by 2 whole square, या फिर cos x by 2 minus sin x by 2 whole square। आपको ये याद रखनी पड़ेगी प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये पहले करवाई गई हैं, पूरा 11th क्लास में ये करवाया गया। तो वही आपने अब आइडेंटिटी, जिसमें हम इस एंगल को हाफ कर सकते हैं, वो वाली प्रॉपर्टी आपने लगाई है। साइन एक्स इस एंगल का हाफ करके साइन प्लस कॉस एंगल का हाफ, देखिए इधर 2x था तो हाफ कर दिया, तो साइन एंगल हाफ प्लस कॉस एंगल हाफ एंड इट्स अ होल स्क्वायर। कैसे है, अब ओपन कर लीजिए, ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी आएगा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की जगह ये 1 हो जाएगा, और जो 2 sin x cos x आएगा वो हमें पता है किसकी आइडेंटिटी होती है, sin 2x की होती है। अल्टीमेटली यू विल गेट इट बैक। तो इसको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा आपको। तो हमने यहाँ पर sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो गया। अब आप sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव डायरेक्टली ऊपर देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो नीचे आया है ये sin x प्लस cos x, पहली बात तो देख लीजिए एंगल सेम हो गया ना, अब आपका सेम हो गया, तो यहीं से हिंट मिल गया था हमें कि क्या करना है। ठीक है, अब हमने sin x प्लस cos x को यानी डिनोमिनेटर में ये जो है इसको t पुट किया, तो हमारे पास sin x का डेरिवेटिव cos x एंड cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। तो आपने इसको cos x माइनस sin x dx की जगह क्या रखा है, dt, एंड इसकी जगह cos x प्लस sin x की जगह ये t एंड इट्स स्क्वायर इज आल्सो हियर, तो ये हो गया t की पावर -2। ठीक है, t की पावर -2 का आपने इंटीग्रेशन किया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, हाँ
t की पावर -2 + 1 यानी t की पावर -1 एंड दिस -1 हियर आल्सो प्लस c -1 का मतलब क्या है, यू आर टू राइट इट इन द डिनोमिनेटर और t की वैल्यू पुट कर दीजिए, sin x प्लस cos x हो गया ये, ठीक है, एंड प्लस c, डोंट फॉरगेट टू राइट द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15 में वी आर टू इंटीग्रेट दिस tan cube 2x secant 2x dx। देखिए हमने tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन था तो हमने उसको किया था secant स्क्वायर x -1 किया था। अब यहाँ पर tan क्यूब 2x को क्या करें, क्योंकि हम तो इवन tan स्क्वायर x का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करते, उसको हम क्या करते हैं tan स्क्वायर x में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी चलिए हम इसको tan क्यूब को हमने tan स्क्वायर 2x लिखा इंटू tan 2x लिखा एंड दिस secant 2x एज इट इज। और tan स्क्वायर का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन वी डोंट नो, दैट्स व्हाई आई हैव कन्वर्टेड इनटू secant स्क्वायर 2x -1 into tan 2x into secant 2x। now I will multiply this with this and -1। अभी यहाँ पर रुके, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं देन वी आर गोइंग टू बी इन ट्रबल। कैसे, तो अब इससे अच्छा हमने यहाँ पर क्या किया, इसको कर लेंगे, थोड़ा लेंदी होगा उससे, हो तो वो भी जाएगा। यहाँ पर अगर आप सीकेंट को टी पुट करते हैं तो सीकेंट का इंटीग्रेशन सीकेंट इंटू टेंजेंट होता है एंड दैट वी आर गेटिंग हियर। तो इसलिए हमने क्या किया, सीकेंट ऑफ 2x को टी पुट किया, उसका डायरेक्ट हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया। सीकेंट 2x का इंटीग्रेशन सीकेंट 2x टेंजेंट 2x एंड फिर एंगल का बाय चेन रूल 2x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 2 इंटू dx इज इक्वल टू dt हो गया ये। तो हम यानी कि secant 2x टेंजेंट 2x dx की जगह आप dt बाय 2 लिख देंगे, क्योंकि ये 2 इधर से इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसकी जगह dt बाय 2 dt और ये अपॉन 2 इधर आ गया, और ये secant 2x को हमने t लिया है तो यहाँ पर हो गया t स्क्वायर -1। ओके, अब तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है टी की पावर 3/3 होता है, -1 का इंटीग्रेशन t है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, वापस रख दीजिए t की वैल्यू क्या है secant 2x यानी कि secant 2x का क्यूब अपॉन 3 माइनस t की जगह secant 2x प्लस 3, so it is done। 16 in this question we have been given to integrate tan raised to power 4x। ये आपके पास tan raised to power 4x है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब हमने tan raised to power 4x को कैसे लिखा है, स्क्वायर ऑफ tan स्क्वायर x। ओके, क्योंकि अभी तक तो tan स्क्वायर x का तो हमें पता है, हम उसको secant स्क्वायर x -1 में कन्वर्ट करके देन वी कैन इंटीग्रेट दैट, but now it is not tan square, it is tan raised to power 4। so let us convert it into the square form, so square of tan square। okay, now tan square, as I told you, okay, tan square it can be written as tan square x into tan square x, ठीक है, means tan raised to power 4x को आप डायरेक्टली लिख लीजिए tan square x into tan square x, no need to write this step। okay, so tan raised to power 4x I have written tan square x into tan square x। now you change 1 tan square x in the form secant square x -1। once the identity of 1 plus tan square x is equal to secant square x, that identity I have used, and one remaining one, this tan square x I have written as it is, tan square x को as it is लिखा। now I will multiply this tan square x with this secant square x and I will multiply this tan square x with this one also and will separate this। so secant square x tan square x का integration minus this tan square x integration of this tan square x। ये तो आसान बिल्कुल सिंपल सा हो गया कि आपने tan x को t पुट किया तो उसका डेरिवेटिव यू आर हैविंग डायरेक्टली। तो अब इसमें tan स्क्वायर x को आपको बताया है क्या करना है, secant स्क्वायर x -1 लिख लीजिए, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर इन द फर्स्ट इंटीग्रल इन दिस पार्ट वी हैव पुट tan x is equal to t, its derivative would be secant square x dx is equal to dt। तो यहाँ पर आपने secant स्क्वायर x dx इसकी जगह क्या लिखा है, ये dt, ओके, दिस dt, एंड tan x की जगह क्या रिप्लेस किया हमने इसको t, तो tan स्क्वायर x था तो t स्क्वायर हो गया माइनस, ओके, secant स्क्वायर x -1 I have written as it is। अब इसका इंटीग्रेशन सो वी नो
tan स्क्वायर का tan रेज़ टू 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस सेकंड स्क्वायर x का भी हमें पता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन tan x होता है माइनस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x वुड बी x प्लस साइन ऑफ द कांस्टेंट। नाउ tan, अब इसकी tan की t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t आपका किसके इक्वल है? tan x के इक्वल है, तो इसकी जगह आपने वैल्यू पुट कर दिया, तो अल्टीमेटली आपके पास इंटीग्रेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें इंटीग्रेट करना है sin क्यूब एक्स प्लस cos क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स को। तो अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है ना, ये प्लस माइनस होता तो थोड़ा अलग तरीके से सोचते। मल्टीप्लीकेशन में है ये, तो हम इनको इसके डिवीजन में भी दे रहे हैं और इसके डिवीजन में भी, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। हमने इसको अलग अलग डिवीजन अलग अलग डिनोमिनेटर दिया, तो ये साइन क्यूब एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। ऐसे कॉस क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, तो कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। और यहाँ पर साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को, इस कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिखोगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टैन एक्स हो जाएगा, एंड 1 अपॉन कॉस एक्स जो है वो सेकेंड एक्स dx। अब ऐसे ही बिल्कुल सेम यहाँ पर cos x अपॉन sin x की जगह cot x आ जाएगा, और जो 1 अपॉन sin x बचेगा उसका cos x। इनके इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट पता है, secant x tangent x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट secant x है, और cot x cosec x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, माइनस cosec x होता है। तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन भी हो गया, लेकिन डोंट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। अब देखिए फिर दोबारा आप ध्यान दीजिए कि यहाँ एंगल x है, इधर भी एंगल x है, बट हियर विद cos, व्हाट इज द एंगल ऑफ cos 2x। तो हमें इसको हाफ करने के लिए आइडेंटिटी पता है, लेकिन वहां पर cos 2x की यू नो देयर आर 4 टाइप्स। तो आपको कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, दैट इज इम्पोर्टेंट टू डिसाइड। तो यहाँ पर देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर वाला लगाइए आप, साइन स्क्वायर वाला लगाइए। क्यों? क्योंकि वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ है प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इट विल बी डायरेक्टली कैंसिल। तो 1 यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला लगाया हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपके पास है प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो बोथ ऑफ दीज विल बी कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, एंड वी नो दैट व्हाट इज 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, दैट इज secant स्क्वायर एक्स। secant स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan x, उसका इंटीग्रेशन सॉरी tan x प्लस c। हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 19। 19th क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन sin x cos 2x dx। तो अब इसमें हम क्या करें, अभी तो यहाँ पर हमें कोई आइडेंटिटी नहीं दिखाई दे रही, कुछ नहीं, लेकिन जब भी आपको यहाँ पर cos डिनोमिनेटर में दिखाई देता है तो हम उसको सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको पता है। क्योंकि अगर मैं इसको cos स्क्वायर x को cos क्यूब x को cos स्क्वायर x इंटू cos x लिखती, तो ये न्यूमरेटर में जाकर 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाता, सेकंड स्क्वायर x की फॉर्म में लिख सकती थी। तो उसी लाइन ऑफ एक्शन को हम लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको सेकंड स्क्वायर कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको cos स्क्वायर से डिवाइड किया और इसको भी cos स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है, दोनों को। तो अब यहाँ तो सेकंड स्क्वायर x हो गया, ठीक है। अब जब आप cos स्क्वायर x से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक cos x तो आई हैव यूज्ड हियर, 1 cos x आई हैव यूज्ड हियर विद sin, इसको ऐसे sin x अपॉन cos x tan x हो गया। 1 cos x आई हैव कैंसिल्ड विद दिस, 1 cos x आई हैव कैंसिल्ड विद दिस, तो यहाँ पर cos स्क्वायर x रह गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर x रह गया, ये यहाँ पर ये। और cos स्क्वायर x को अगेन यू कैन कन्वर्ट इनटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x कैन बी रिटन एज secant स्क्वायर x, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आप इस tan x को t पुट करते हैं तो आपके पास उसका डेरिवेटिव है secant स्क्वायर x। तो फिर आप कहेंगे भाई दिस secant स्क्वायर x इज लेफ्ट, तो कोई बात नहीं, वी कैन कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ tan। तो secant स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर x, secant स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब आप जैसे ही tan x को t पुट करते हैं, योर क्वेश्चन इज सॉल्व। आप tan x को t पुट कीजिए, उसका डेरिवेटिव क्या है, secant स्क्वायर x dx, secant स्क्वायर x, ठीक है जी, secant स्क्वायर x dx इक्वल टू dt आ गया। यानी कि ये जो आपके पास है secant स्क्वायर x dx, उसकी जगह आप लिख देंगे ये dt। तो ये secant स्क्वायर x dx की जगह आपके पास आ गया dt, और जहां भी tan x है उसको आपने पुट क्या किया है, t। इस tan x को क्या पुट किया है, t। तो tan x को t पुट किया है, फिर आप इसको इजीली अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, आप अब ये जो आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी आ गया आपके पास,
अब आप 1/t अलग कर दीजिए, t² अलग कर दीजिए, 1/t का इंटीग्रेशन आपको पता है log of t होता है, और यहाँ कैंसिल होके आ जाएगा t का इंटीग्रेशन t²/2। ओके, आप इसके बाद t की वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज ऑल्सो डन, ये भी आपका हो गया। लेकिन यहाँ पर कभी भी आप करते हैं तो डोंट फॉरगेट टू राइट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 20 में इंटीग्रेट करना है cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स वेरी क्लियर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि आप एंगल देखो, ये 2x है और ये x है, ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं कि भाई एंगल 2x है उसको x बनाओ, लेकिन अब डिमांड के अकॉर्डिंगली एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन लुक हियर इन द डिनोमिनेटर हियर इट इज cos x आल्सो एंड sin x आल्सो, यानी cos 2x का वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें cos x भी है sin x भी है, तो वो होता है cos square x minus sin square x, वी हैव अप्लाइड दैट। ओके, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन कर दो, cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x, और अब आपने cos x प्लस sin x को इस वाले cos x प्लस sin x होल स्क्वायर के एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। अब इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट है आपके पास, ऊपर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डायरेक्ट है। हाउ? देखो cos x प्लस sin x है आपके पास, cos x प्लस sin x को t पुट कीजिए, तो देखो sin x का डेरिवेटिव ये लिखा है cos x, और ये cos x का डेरिवेटिव क्या लिखा है माइनस sin x, ठीक है। तो आपका ये cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt आ गया आपका, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे होगा, तो आप ये देखिए cos x माइनस sin x dx की जगह आपने dt लिख देना है, dt, और ये हमने t पुट किया, dt अपॉन t, डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है log ऑफ t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, बस हो गया ये आपका। अब आ जाइए नाउ क्वेश्चन नंबर 21, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ cos x dx। ओके, देखो अगर यहाँ साइन इनवर्स है, आई वांट हियर आल्सो टू बी sin x, तो cos x का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास sin x आ जाता है, तो वेरी इजी टू डू इट। तो cos x को हम लिख सकते हैं sin ऑफ π/2 माइनस x, तो sin and sin inverse, okay, we are getting rid of now it, so we are left only π/2 minus x, π/2 minus x is here। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो π/2 का इंटीग्रेशन आप अलग एंड माइनस x का आपका अलग इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। हाँ जी, ये देखिए कि हम π/2 माइनस x को अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हो गया π/2 का इधर आ जाएगा, देखो ऐसे π/2 dx अलग हो जाएगा, और ये माइनस x dx का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। π/2 x का मैं इधर इसका इंटीग्रेशन दिखा रही हूँ, π/2 का हमने कैसे किया, π/2 इज अ कांस्टेंट बिकॉज वी आर टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर कुछ भी x नहीं है, कोई वेरिएबल x नहीं है, तो विल कंसिडर एज इट इज अ कांस्टेंट, वी विल टेक इट outside this integral sign, so we are left here with 1 and dx, और 1 का इंटीग्रेशन होता है आपके पास x, तो ये π/2 इंटू x हो गया इसका इंटीग्रेशन, π/2 इंटू x, और माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस x²/2 प्लस c इज द दैट्स आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos of x minus a and cos of x minus b। हाउ टू इंटीग्रेट इट? अब यहाँ तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं लग रही है, हमें कोई दिखाई दे रही है, तो इसमें एक ट्रिक है, देखिए क्या करना है। हमने ऊपर यहाँ पर साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, ठीक है, उधर मल्टीप्लाई किया साइन a माइनस बी से और डिवाइड भी किया, क्वेश्चन इज नॉट चेंज। अब हम एक्चुअली x माइनस a और x माइनस b लेके आना चाहते हैं, इस एंगल को a माइनस b को x माइनस a x माइनस b की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया, इस एंगल में प्लस x किया माइनस x किया, ओके, प्लस x माइनस x करने के बाद हमने ये x अब हमने ये क्या किया, x माइनस b, ये देखिए x माइनस b को अलग रख लिया, ठीक है, और ये माइनस x प्लस a रह गया हमारे पास, उसमें से कॉमन निकाला माइनस, और ये हो गया x माइनस a, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये x माइनस b को आप a मान लीजिए, और x माइनस a को आप b मान लीजिए, तो ये हो गया साइन ऑफ a माइनस b, फॉर्मूला साइन ऑफ a माइनस b लग गया आपके पास। आप सोच रहे होंगे जरूरी है साइन a माइनस b से आपने डिवाइड करना है, साइन b माइनस a से कर लीजिए, यहाँ पर साइन b माइनस a रख लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर वही करना है प्लस x माइनस x, बिल्कुल इसी तरीके से ही उसमें भी इसी तरीके से आपने करना है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आप x माइनस बी को आपने a माना है और x माइनस a को आपने b, ये साइन
ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, उसके बाद आप इसमें सेपरेट ये डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स को अलग अलग डिनोमिनेटर दे दीजिए। तो यहाँ पर जब इसका डिनोमिनेटर में ये रखेंगे तो cos x माइनस ए cos x माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, sin x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी, तो वो आ जाएगा tan x माइनस बी। और ऐसे इसमें जब करेंगे cos x माइनस बी sin x माइनस ए है, तो यहाँ पर cos x माइनस बी cos x माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर sin x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए बचेगा, वो tan x माइनस ए बच जाएगा आपके पास। आपको पता है tan ऑफ x का इंटीग्रेशन log ऑफ सेकेंड x होता है, तो अब tan ऑफ x माइनस बी है तो इसका इंटीग्रेशन log ऑफ सीकेंट x माइनस बी हो जाएगा, और tan x माइनस ए का log ऑफ सीकेंट x माइनस ए हो जाएगा। ठीक है भी, अब इसके बाद डोंट फॉरगेट टू राइट दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब log a माइनस log b की आइडेंटिटी लगेगी, ये है log a माइनस log b, क्या होती है log a माइनस b की आइडेंटिटी, log a अपॉन b, तो सीकेंट x माइनस बी अपॉन सीकेंट x माइनस ए। अब सीकेंट x माइनस बी क्या होता है, 1 अपॉन कॉस x माइनस बी, सीकेंट x माइनस ए क्या होगा, 1 माइनस कॉस ऑफ x माइनस ए, यानी कि ये कॉस सीकेंट x माइनस ए यानी कॉस x माइनस ए का रेसिप्रोकल, सीकेंट x माइनस बी आपका कॉस x माइनस बी का रेसिप्रोकल, ये आपका फाइनल आंसर इसमें आ गया है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज द ट्रिक इज यूज्ड and without trick you won't be able to solve it, so you mark this question as an important question in your notebook, in your books also. So whenever you will revise this exercise, don't forget to revise this questions of this exercise 7.3 23rd question आपका है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सिंपल सा है, आप इसका डिनोमिनेटर सेपरेटली अलग अलग टर्म्स को अलग अलग दे दीजिए, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, आपके पास बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मींस सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस सेकंड स्क्वायर एक्स। सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, cos x फिर ये माइनस लगाया, फिर उसके बाद cos x स्क्वायर x का माइनस cot x होता है, इसलिए ये प्लस हो गया, and plus c is the sign of integration. Now, sorry, constant of integration. Sorry, constant of integration. Now come to question number 24. इसमें अब आपको देखना है, do you have any function of which derivative you have available here in the question? Yes. We can see the derivative of e raised to power x into x का derivative आपके पास ये है, कैसे? Let us see. E raised to power x into x is equal to t रखते हैं, तो by product rule if you take the derivative, पहले आपने x का derivative लिया 1 ex will be written as it is plus ex का derivative ex ही होता है, x will be written as it is. Now this is equal to dx is equal to dt. अब यहाँ से ex is common, ex 1 plus x dx is equal to dt. तो आप ये देखिए, ये जो आपके पास है e raised to power x into 1 plus x dx that is equal to your dt. तो आपने इसकी जगह यहाँ पर dt रख दिया है, ठीक है, और यहाँ पर cos square ex dx की जगह हमने ये t पुट कर दिया, तो cos square t 1 upon cos square t होता है secant square t, and secant square t का इंटीग्रेशन होता है tan t plus c, t की वैल्यू दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, that is e raised to x 2x plus, don't forget to write down this constant of integration. So it's done. With this, your exercise 7.3 is completed.